the servlet, what is actually a servlet and how servlet works. So can you please tell me how it's working and what's the Apache Tomcat or like WebSphere or something like that, Glassfish. So guys, consider one thing. I have lots of clients. This is client number 1, this is client number 2, this is client number 3, this is client number 4. Now first thing is what is static website and what is dynamic website? Yes, anyone? कौशिक को छोड़ के, कौशिक रिप्लाई नहीं करेगा. Yes. What is static website? What is dynamic website? स्टैटिक में सर यूजर जो इनपुट डालता है वही आउटपुट होता है और डायनेमिक में इनपुट के हिसाब से आउटपुट आता है. फाइन. स्टैटिक में इनपुट लेते ही नहीं सर. ओके, हाँ, स्टैटिक मतलब वो सर्च जो करता है वही रिटर्न करता है. गॉट इट. ओके, एंड डायनेमिक मींस वो जो भी इनपुट था यूजर का, अदरवाइज डेटाबेस से डेटा लाना, अदरवाइज लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजर के इनपुट के हिसाब से वर्क करे, बट डायनेमिकली बिहेवियर होगा. हर एक यूजर को अलग अलग आउटपुट मिल सकता है. हो सकता है कि यूजर को सेम आउटपुट भी मिले, बट दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डायनेमिक. ओके, लाइक मान लो मैंने 10 and 20 इनपुट किया, मुझे 30 मिला, कौशिक ने भी 10 और 20 इनपुट किया, दीपक ने भी 10 और 20 इनपुट किया, आलम सर ने भी 10 और 20 इनपुट किया, ध्रुवी मैडम ने भी 10 और 20 इनपुट किया, तो सबको 30 आउटपुट मिलेगा. So it's not like that कि always output अलग ही मिलेगा, but the thing is some logic is there, some program is there. So consider all these are nothing but a client. जैसे कि ये मेरा पहला client हो गया, this is my second client, this is my third client, this is my fourth client. I have different clients. तो जब भी client आएंगे तो हमारे उसके client के request server पे जाएंगे. On server I will have some programs. मेरे पास यहाँ तो कुछ programs. Right now we are dealing in Java, so we will have actually Java programs. Okay, and Java programs में आपको simple सा ऐसा बोलूँगा ना कि I have actually servlet. I have actually a servlet. So what is servlet? It's a Java program. That means Java program मतलब that is a class, but which resides on server. Now what is server? It's a computer. It's a program. It's a process, something like that. So I have a Java program which is actually exists on a server. So sorry, on a server. तो जब भी client का request आएगा, now one more thing, client always sends the data in actually HTML, and यहाँ पे हमारे पास Java है, so we want to convert first thing, we want to convert HTML to Java and response to Java to HTML convert. So what we will have actually some group of processes जो मेरा कुछ काम करके दे. मेरे पास group of processes होंगे जो मेरा कुछ काम करके दे. And the first thing is convert HTML to Java and Java to HTML. So एक तो पहला प्रोसेस मुझे ऐसा चाहिए जो HTML to Java, Java to HTML कन्वर्ट करे. बट उससे भी पहले प्रोसेस ऐसे चाहिए दैट्स एक्चुअली मैपर. मैपर इन द सेंस व्हाट, कौन सी रिक्वेस्ट के लिए कौन सा जावा प्रोग्राम मुझे रन करना है. दैट मींस अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया एडिशन के लिए तो add.java को रन करें, किसी ने रिक्वेस्ट किया लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए तो multiplication.java रन करिए, समथिंग लाइक दैट. सो आई नीड मैपर आल्सो. So and one more thing, like मेरे पास एक मैपर है, मेरे पास एक कन्वर्टर है. तो सर मैपर को कौन रन करेगा, कन्वर्टर को कौन एग्जीक्यूट करेगा, एंड जब मैपर एग्जीक्यूट हुआ तो ये जावा प्रोग्राम को एक्चुअली जेवीएम चाहिए, तो कौन जेवीएम के साथ कनेक्टिविटी करेगा, उसको रन करेगा, आउटपुट. कोई भी जावा प्रोग्राम मतलब जावा क्लास, कोई भी जावा प्रोग्राम मतलब जावा क्लास. तो अगर मेरे पास कोई क्लास अवेलेबल है, तो क्लास को रन करने के लिए या क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आई नीड ऑब्जेक्ट. So we will create an object of this class, and after that we will just call some functions of that class. ये सब क्वेश्चन मार्क्स, ये सब कुछ कौन करेगा. So guys, for that purpose what we require one more guy जिसके पास ग्रुप ऑफ फंक्शंस हो और ग्रुप ऑफ फंक्शन को जिसके पास ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस हो और ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करे. So that's nothing but a server. So what is server? Server is nothing but a group of programs. Server is nothing but a software in the sense it has group of programs और जिसको वो like कुछ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने वाला है, जिसको कोई सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है. So server is nothing but a software, you can say that right now. इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर है, otherwise you can just say that group of programs it is. Okay, it is group of programs. What is the task of this software or what is the task of this group of programs? It will, as per your request, it will run some programs. बट सबसे पहले जब मैं रिक्वेस्ट करूं, यहाँ से मान लो मैंने रिक्वेस्ट किया, सो इस रिक्वेस्ट के लिए मेरा सर्वर ऑलरेडी वर्किंग मोड में होना चाहिए. ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा एंड एडवांस वो सर्वर वापस ऐसा होना चाहिए जो एडवांस जावा के साथ, तो जावा के प्रोग्राम्स के साथ वर्क कर पाए.
मतलब JVM के साथ डील कर पाए. So for that हमारे पास Apache Tomcat available है. We have Glassfish server or we have actually like WebSphere server. So there are lots of servers. Okay, there are WebSphere. There are lots of servers. So मुझे ऐसा कोई servers की जरूरत. Okay, मुझे ऐसा कोई server का use करना है. So what I will do? Firstly, I will just download this group of programs or software or server. पहले तो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ लाइक प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर या सर्वर ऐसा कुछ डाउनलोड करूंगा. सो गाइस राइट नाउ आई विल डील विद द अपाचे टॉमकेट. फर्स्ट थिंग, अपाचे टॉमकेट डाउनलोड करने के लिए ये मेरा वेबसाइट है. आई जस्ट राइट डाउन डाउनलोड अपाचे टॉमकेट. ओके, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा था डाउनलोड अपाचे टॉमकेट 7. बट अब दिस वहां पे बहुत सारे वर्जन्स आ चुके. आई एम एक्चुअली फैमिलियर विद द 7 वर्जन 7. सो मैं 7th वर्जन यूज कर रहा हूं. पहली स्क्रीन को अगर आप ओपन करोगे, इसको अगर आप ओपन करते हो तो दिस विल समथिंग लाइक दिस. वो ऐसा कुछ दिखेगा. नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ विंडोज सिस्टम. सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे विंडोज सिस्टम के लिए कोई जिप फाइल डाउनलोड. दैट इज एक्चुअली दिस. ओके, मैंने ये वाला कोई जिप फाइल डाउनलोड. दैट इज एक्चुअली 64-bit विंडोज से. आई जस्ट डाउनलोड द जिप फाइल. ओके, सॉफ्टवेयर अभी अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो तो दो तरीके से होता है. फर्स्ट थिंग इज जिप फाइल, सेकंड थिंग इज exe फाइल. exe मतलब डबल क्लिक करो वो इंस्टॉल हो जाता है. डबल क्लिक करो वो इंस्टॉल हो जाता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जिप फाइल मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करें और कॉपी पेस्ट करें. बोथ द थिंग्स आर देयर. आपको जिस फॉर्मेट में करना है, जैसे इसने भी बोला था जैसा डू यू वांट टू डाउनलोड लाइक सेटअप फाइल. सो जैसे देखो यहाँ पे सर्विस इंस्टॉलर भी है. फिफ्थ ऑप्शन हियर इट इज. सो सर्विस इंस्टॉलर भी है. अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ तो डायरेक्टली सेटअप फाइल मतलब exe फाइल डाउनलोड होगी. डबल क्लिक करो वो इंस्टॉल हो जाएगा. But I am interested in to just download a zip file. So there are two options. Zip file you can download exe file. So I just download the zip file. And here in my actually downloads, I have a zip file. Here I have Apache Tomcat 7. I just extract that, so I just got the folder. Now what I did, I just copy this folder, and in actually desktop, I have a specific folder. Inside that, I just paste this folder. Got it? मैंने सिंपल Apache Tomcat को डाउनलोड किया because it's a zip file. So now I can copy that. Once again Apache Tomcat folder is there. Actually this one is useful. Outer folder तो zip का नाम था. So that is my Apache Tomcat. What is that Apache Tomcat? That is like that is actually this black biggest rectangle. Okay, जिसके अंदर ये सब services हो गया. I have not to worry about this. Okay, now yesterday, otherwise in last session we just discussed one thing, that is Servlet. What is Servlet? It's a Java side, sorry, it is server side Java program. But how to define or how to create a Servlet? So how to create a Servlet, guys? So पहला rule क्या था? Define a public class. Extend that class, otherwise inherit that class from Servlet interface directly or indirectly. Okay, directly or indirectly. तो एक क्लास बनाए Servlet के अंदर से directly और indirectly उसको like inherit करें, override or define useful methods. Now what do you mean by useful methods? So वो बाद में देखते हैं. Define and or override some useful methods. So that's the way to just create a Servlet. So now let I just define. I just try to define the Servlet. So मुझे पहला step क्या बोला था? Kaushik, what's the first step? Your class must be public. Okay, your class must be public. So public class, my first Servlet. So let I just say first Servlet. नाम में guys capital words use करना या नहीं करना, that's your choice. That's always your choice. आपको करना है नहीं करना आपकी मर्जी. Okay, मतलब capital लिखे या पूरा small लिखे. But the pattern is like capital लिखोगे तो that's fine. So मैंने capital में सब लिख दिया. Now I do not want to actually Servlet के लिए देखो मैंने लिखा था directly or indirectly. Either can directly inherit this class from the Servlet interface or indirectly also. So actually there are three options. Servlet, that's an interface. Second one is generic Servlet. That's actually a class. अब उन दोनों Servlet difference क्या है वो बाद में देखते हैं. And last one is actually HTTP Servlet. That's also a class. So इन तीनों में से कोई भी चीज का मैं use कर सकता हूँ. Okay. But now directly or indirectly का मतलब क्या होता है? Now Servlet interface is a super interface. This guy is nothing but a child of some generic Servlet, and this guy is a child of like HTTP Servlet is a child of generic Servlet.
सो आप अगर सर्वलेट इंटरफेस का यूज करोगे डायरेक्टली तो भी चलेगा, आप जेनरिक सर्वलेट करोगे तो जेनरिक सर्वलेट का सुपर कौन है, दैट इज सर्वलेट, तो भी अगर मैं ऐसा लिखूंगा माय फर्स्ट सर्वलेट is a child class of generic servlet, but generic servlet किसका child था, servlet का, तो मैं simply बोल सकता हूँ okay now grant parent of this first servlet is actually servlet, और सर्वलेट को मेरे क्लास को मैं एचटीपी सर्वलेट से इनहेरिट करूं तो एचटीपी सर्वलेट कहां से इनहेरिट हुआ है, जेनरिक सर्वलेट से, जेनरिक सर्वलेट कहां से इनहेरिट हुआ है, सर्वलेट से, तो भी इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड ही है। लेट वंस अगेन लेट अस ड्रॉ दैट सो इट विल बी मोर क्लियर। सो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले लाइक इसी के अंदर मैं बना देता हूँ, आई हैव सर्वलेट, आई हैव जेनरिक सर्वलेट एंड आई हैव एचटीपी सर्वलेट एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड, so these are connected like this, this is the super and this is the child, वो इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है। So now I want to define my own class. Okay, मुझे खुद का सर्वलेट बनाना है, so let I just define for servlet. So that's my class. So guys, you have three options. Either you can inherit your class, either you can inherit your class from the servlet or generic servlet. अगर मान लो मैंने generic servlet से इसको inherit किया तो my first servlet is inherited from the generic servlet, generic servlet is inherited from the servlet, so मैं बोल सकता हूँ first servlet is indirectly inherited from the servlet, और मैं इसको अगर first servlet को मैं HTTP servlet से inherit करूँ तो then also I can say HTTP servlet is a child of generic, generic servlet is a child of servlet, that means first servlet is indirectly inherited from the servlet. Is this clear to everyone? Yes sir. So guys, मैं एकदम simple सा वे ले रहा हूँ, I want to just inherit my class from the servlet, that's it. But now जो servlet नाम का जो इंटरफेस है ना, उसके पास 5 abstract methods है, so उन लोगों ने servlet को ऐसा बनाया, उसके पास 5 abstract method है, public and void, init, servlet config. The second one is public, then destroy without any argument, public service with servlet request REQ, servlet response. Okay, just a moment. This is the capital, so that is RES. Okay, and this one will actually throw in servlet exception. The next one is actually like servlet config, get servlet config, that's the next method, and here I have servlet context, okay, and get servlet context. अब हम लोग बोलेंगे सर ये सब कुछ क्या है, just ignore that, मुझे भी नहीं पता ये सब कुछ क्या है, just छोड़ दो, but the thing is हाँ मुझे पता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इन सबको आप लोग को भी पता चल जाएगा, after some time आप लोग भी familiar हो जाएंगे, इन सब की क्या जरूरत है। But guys, still the thing is, all these are nothing but members of servlet interface. तो अगर आप servlet interface को आप implement करते हो, that means what? You have to define all this. आपको ये सब बनाने पड़ेंगे, आपको ये सब बनाने पड़ेंगे. So what is the next step? पहला स्टेप क्या था अगर खुद का सर्वलेट बनाना है तो क्या लिखा था? Define a public class. We just define our public class. Second step is, sir, either directly like inherit class from the servlet interface directly or indirectly. मैंने directly implement किया, that was my choice, मैंने directly implement किया. But जब मैंने servlet interface को study किया, तो that guy having 5 abstract methods, then I have to override all this. भले मैं कुछ ना लिखूं, otherwise मैं इसमें ऐसा लिख दूं, भाई ये कौन सा मेथड है, जब मुझे सिर्फ मेरे नॉलेज के लिए इसमें सिर्फ चाहिए था, ओके दिस इज एक्चुअली इनिट, तो इनिट कब रन होगा मुझे पता चले, इनिट मेथड कब रन होगा मुझे पता चले, ओके सो दैट्स दैट, फॉर दैट मैंने सब में कुछ ना कुछ मैसेज दे दिए, ओके सो यहाँ मैं मैसेज दे देता हूँ, लाइक लेट आई जस्ट डिफाइन दिस आल्सो, एंड यहाँ हम मैसेज दे देते हैं सर्विस, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, मैंने सिर्फ मैसेजेस दिए हैं, यहाँ मैसेज दे देते हैं गेट सबमिट कॉन्फ़िग, एंड गाइस बट देखो यहाँ रिटर्न टाइप दिया, इन सब में रिटर्न टाइप void था, तो हमने रिटर्न वैल्यू नहीं लिखा, बट हियर देयर इज अ रिटर्न टाइप दैट इज सर्वलेट कॉन्फ़िग, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा तो रिटर्न कुछ भी,
तो मैंने null कर दिया बिकॉज मेरे पास config का ऑब्जेक्ट नहीं था. Okay, in a similar way, here we have a return statement, sorry, return type servlet context. इसके लिए भी मैंने null return किया and यहाँ मैसेज दे देते हैं get servlet context. नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCDEF भी लिख सकते हो. So what we did, we just defined our public class, we just inherit that class from the servlet interface and we just override. यहाँ लिखा था override all the useful methods और mandatory methods. तो मैंने जितने भी mandatory methods है सबके सब override कर दिया. So that's the first way how to create a servlet. That is the first way how to create a servlet. Second way is, इन्होंने ऐसा बोला सर, you can just use generic servlet also. अब generic servlet भी बना सकते हो. But what about generic servlet? So अब हमको पता है generic servlet किसका child class है guys? Generic servlet किसका child class है? Does anyone? Servlet. Fine. Servlet interface का child class है. So उसका syntax कुछ ऐसा होना चाहिए. उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होना चाहिए. बट गाइस जेनेरिक सर्वलेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब डायरेक्टली आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर ये 5 में से 4 मेथड भाई ने बना दिए. 5 में से 4 मेथड भाई ने बना दिए बट डू नथिंग मेथड खाली बना रखे, बट सर्विस नहीं है. उसके अंदर कौन सा मेथड नहीं है? सर्विस नहीं है. आई होप समझ में आ रहा है सबको गाइस. कुछ स्टिल डाउट हो तो मुझे बताइएगा बिकॉज ये प्योर जावा है. ओके, सो प्योर जावा इन द सेंस जावा का कोड लिख रहा हूं. सो सेकंड क्लास इज जेनेरिक सर्वलेट व्हिच इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ सर्वलेट इंटरफेस. नाउ ये बंदे ने क्या किया हमारी सिंपलिसिटी के लिए. आपको अगर सर्वलेट बनाना है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? अगर आपको खुद का सर्वलेट बनाना है, मान लो ये मेरा पहला तरीका था, दैट इज टाइप 1, तो यू कैन से दैट मेथड 1. ओके, दैट इज मेथड 1. व्हाट इज द मेथड 1? Implement, otherwise like inherit class from. That is the first way. Okay, now what is the second way? What is the second method? Just a moment. Okay, that's my first method. मैं दूसरा ऐसा करना चाहता हूँ. I want to define a class, but I want to right now, like that's my method 2. I want to actually inherit that from the generic servlet. मुझे उसको जेनेरिक सर्वलेट से इनहेरिट करके करना. सो पहले मुझे जेनेरिक सर्वलेट का सिंटैक्स पता होना चाहिए. I just open some library and got the syntax. So my generic servlet is an abstract class which is actually inherited from the servlet. And servlet के अंदर 5 abstract मेथड थे, भाई ने 4 बना दिए. क्यों 4 बना दिए कि सर अब देखो जब भी आपको सर्वलेट बनाने आपको ये 5 मेथड बना ले, ठीक है ना. बट अगर आप ऐसा कुछ करो, तो देखो पहला स्टेप क्या था सर्वलेट बनाने का, आपका क्लास पब्लिक होना चाहिए. मैंने पब्लिक क्लास बनाया, बट नाउ अब मैं उसको इनहेरिट कर रहा हूं जेनेरिक सर्वलेट से. ओके, सो गाइस जेनेरिक सर्वलेट में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? देखो 4 हमने बना दिए थे, मतलब ऊपर से 5 आ रहे थे, उसमें से 4 आपने बना दिए, मतलब ओवरराइड कर दिए. दैट मींस सुपर क्लास के मेथड चाइल्ड क्लास में नहीं आएंगे. सो यू हैव ओनली अ सिंगल क्लास दैट, सॉरी यू हैव ओनली अ सिंगल मेथड दैट इज सर्विस, जो सुपर से चाइल्ड में आ जाएंगे. लेट आई रिपीट दिस कांसेप्ट. मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे सुपर क्लास में कितने मेथड्स हैं या सुपर इंटरफेस में कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है. सो वी हैव 5 मेथड्स. ऑल दीज मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. जब मैं जेनेरिक सर्वलेट को सर्वलेट इंटरफेस से इनहेरिट करूं, और इनहेरिटेंस के टाइम हमने क्या किया, 4 मेथड खुद से बना दिए. सुपर से कितने मेथड्स आ रहे थे? 5. 4 आपने सेम नाम के बना दिए, तो वो 4 नीचे नहीं आएंगे. सो कौन सा मेथड ऊपर से कॉपी होगा? ऊपर से मतलब सर्वलेट इंटरफेस से कौन सा मेथड चाइल्ड क्लास मतलब जेनेरिक सर्वलेट में इनहेरिट होगा? सर्विस मेथड जे नथी बनाई हुई, बट कौन सा नहीं बनाया हमने? सर्विस मेथड वी डिडंट डिफाइन. ओके, सो ये हम लोग नहीं कर रहे, ये लाइब्रेरी इस तरीके से लाइब्रेरी में अवेलेबल है. सो सर्विस मेथड हमारे पास यहाँ पे एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सो दैट माय क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट. नाउ समवन आस्क यू क्वेश्चन like which method I have to compulsory override when I will just use generic servlet. So the compulsory method is a service method. The compulsory method is a service method. So compulsory आपको कौन सा मेथड बनाना है? अब जब ये क्लास बनाओगे तो आपको कौन सा मेथड बनाना है? You have to just define a service method. So that's pretty simple. Okay, so इन लोगों ने ये बना के इसीलिए दिया था कि यूजर्स को बाकी 4 मेथड का काम ही नहीं है, तो यूजर्स को बाकी 4 मेथड बनाने ही नहीं है. Then user can just directly just use a generic servlet. User can directly use the generic servlet and in the generic servlet
that user has to define only a single method, and that single method is nothing but a service method only. Okay, तो आपको एक ही method बनाना है. So now we have to define only single method. Is it clear? So better option is but obvious generic servlet. But now, so I have a question कि अगर better वो था तो उन्होंने servlet offer ही क्यों किया? उसका भी कुछ तो काम है. Okay, तो हम लोग दोनों one by one देखेंगे. But that's the second technique. But now the third technique is we can just use HTTP servlet also. We can use HTTP servlet also. We can use guys. So what about the HTTP servlet? So first thing, HTTP servlet was specially designed for the HTTP request. Then I firstly just give you a syntax. So my HTTP servlet class, that is also a public class, which is HTTP servlet, which is inherited from generic servlet. And this guy define actually service also. उसने service बना दिया था. So you have not to define anything. अगर आप HTTP servlet का use करते हो तो आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं. Okay, उसने वो बना दिया. So do not worry about it. Now what about this HTTP request? What is this? So what about this actually servlet request? What is this servlet response? What about this servlet exception? Just ignore that. इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सब कुछ step by step हम लोग पढ़ेंगे. And HTTP servlet having lots of more methods. उसके पास बहुत सारे methods हैं. तो ये क्यों डेवलप किया? Because जब आप REST API पे काम करोगे ना, what is REST API? That is the next thing. Okay, वो भी हम लोग को स्टडी करना है. But आप जब REST API पे काम करोगे, that means जब आप क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट कराते हो, जब क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो आपको पता है क्लाइंट में जब हम HTML फॉर्म बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ लिखते थे. HTML सबको पता है गाइस? यस सर. कौशिक सर का आंसर आ गया. बाकी पिनल, अमीशा, HTML पता है? यस सर. यस सर. सो मुझे HTML में एक फॉर्म बनाना है गाइस. क्या करूं? जिसके अंदर यूजर का नाम और पासवर्ड, दो चीजें चाहिए. मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा, ऐसा मत बोलना ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो. यूजिंग फॉर्म टैग. बोलते जाओगे सर. क्या लिखो? फॉर्म टैग. फॉर्म टैग ऐसा लिखो? नहीं फॉर्म टैग. फॉर्म लिखो. ठीक है फाइन. अब मुझे इसके अंदर दो इनपुट बॉक्स चाहिए एंड एक बटन चाहिए. इनपुट टाइप टेक्स्ट. इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ. ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो. सो दैट्स दैट. मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. सेकंड टाइप में भी मैं टेक्स्ट ही ले लेता हूँ. आप पासवर्ड भी ले सकते हो. ओके, सो मैंने पासवर्ड ले लिया. चलो, और इसका नाम रख देते T2. मुझे बटन चाहिए, तो क्या लिखूं? इनपुट टाइप बटन. नहीं सर, सबमिट चाहिए ना. बटन ऑल्सो वी कैन डू, बट मुझे सबमिट बटन चाहिए. सबमिट. ओके, उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं. लाइक इट्स अ लॉगिन. ओके, दैट्स इट. दिस इज माय फॉर्म. बट गाइस, जब ये फॉर्म को मैं रन करूं तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट समथिंग लाइक दो इनपुट बॉक्स होंगे एंड वन बटन इज देयर. और बटन के अंदर लिखा होगा सबमिट. लाइक लेट आई जस्ट राइट डाउन हियर. अब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो कहां जाएगा? मतलब एक मान लो मैंने यहां लिख दिया, ओके दैट इज सूरत एंड माय पासवर्ड इज गुजरात. ओके, अभी पासवर्ड दिख रहा है. ठीक है, बट वन स्टार आएगा. सो दैट्स माय यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो ये डेटा जाएगा कहां पे? ये जो भी डेटा मेरे पास है, ये मेरा फॉर्म था. मान लो ये मैं HTML में कुछ कोड लिखा, तो ये मेरा कुछ फॉर्म. डेटा कहां जाएगा? तो मेरा क्वेश्चन है, कहां भेजना है भाई? जहां भेजना है उसका नाम लिख दो. बोलो कहां भेजना है. आप बोलो वहां भेज देते हैं. सो एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे, तो नेक्स्ट कौन सी जगह पे आप डेटा भेजना चाहते हो? तो गाइस देखो, ये जो फॉर्म है ना, वो मैं क्लाइंट साइड पे रखने वाला हूं. ये मेरे पहले क्लाइंट को मिलेगा ये फॉर्म सेकंड क्लाइंट को मिलेगा, थर्ड क्लाइंट को मिलेगा, फोर्थ क्लाइंट को मिलेगा. तो जब फर्स्ट क्लाइंट ने यहाँ से फिलअप किया, तो ये पूरा डेटा मैं मेरे पहले जावा के प्रोग्राम के पास भेजना चाहता था. मतलब फर्स्ट सर्वलेट को भेजना चाहता था. हमारे पास सर्वलेट का नाम फर्स्ट सर्वलेट है ना. हमारे सर्वलेट का नाम फर्स्ट सर्वलेट. तो मुझे टोटल डेटा फर्स्ट सर्वलेट को सेंड करना था. सो दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये डॉट की जगह. बाद में हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट लेट मी जस्ट राइट डाउन फर्स्ट सर्वलेट. सो व्हाट इज दिस एक्शन? Can you please tell me what do you mean by this action? Action का मतलब क्या?
जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है फॉर्म पे, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करो, एट दैट टाइम आपके डेटा कहाँ सेंड करना चाहते हो, कौन से फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो। लेट आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको ग्रुप में मैसेज आया था, दैट इज डिजाइन इंजीनियरिंग का कुछ सबमिशन या कुछ रजिस्ट्रेशन है। सो यू विल हैव अ फॉर्म, ओके, आपके पास कोई फॉर्म होगा और ऑनलाइन मान लो जीटीयू ने कोई फॉर्म दिया, गाइज आप लोगों ने डिटेल्स फिलअप कर दी। डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे मान लो हम लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं कि लाइक तुषार ने कुछ डिटेल्स फिलअप किए, ध्रुवी ने कुछ डिटेल फिलअप की, कौशिक ने डिटेल फिलअप की। अब वो डेटा जाएगा कहाँ पे गाइज, आपने तो डेटा दे दिया, वो डेटा कहाँ जाएगा? सो यू कैन सिंपली से दैट वो डेटाबेस में जाएगा। तो एचटीएमएल के थ्रू थोड़ी डेटाबेस कनेक्ट होता है, वहां पे बैकएंड में कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। सो वो प्रोग्राम के पास वो चीज जाएगी और वो प्रोग्राम उसको डीबी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डीबी में स्टोर करेगा। प्रोग्राम एचटीएमएल सॉरी पीएचपी हो सकता है, वो प्रोग्राम आपका जावा का हो सकता है, वो प्रोग्राम आपका डॉटनेट का हो सकता है, वो सर्वर पे मतलब कौन से टाइप का उसने काम काज किया, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, सो आई मीन टू से कि वो डेटा कहाँ सेंड करना है, वो हम लोग को कहाँ पे सेट करना होता है, एक्शन के अंदर। तो फॉर्म के साथ साथ दूसरी क्या चीज आती है, एक्शन, कि मुझे ये डेटा फॉर्म के अंदर जितने भी मेरे पास बॉक्सेस, इनपुट बॉक्सेस है या चेक बॉक्सेस है या रेडियो बटन है या स्पिनर है, स्पिनर मतलब ड्रॉप डाउन, तो ये सब डेटा मुझे कहाँ सेंड करना है। नाउ अनदर थिंग, डेटा मुझे यहाँ से सेंड तो करना है, बट वो डेटा कौन से फॉर्मेट से यहाँ से लेके जाऊंगा। अगले को मुझे बताना था कि जब ये तुझे डेटा मिले ना भाई, तो डेटाबेस से रीड ऑपरेशन करना, बिकॉज मैं साइन अप करवा रहा, सॉरी लॉग इन करवा रहा। दूसरी चीज मुझे ऐसा करना था, ओके मैं साइन अप कर रहा हूँ, दैट मींस जब भी तुझे रिक्वेस्ट मिले या डेटा मिले ना, तो डेटाबेस में आप डेटा इंसर्ट करना। So I want to just inform my computer which type of task you want to perform. So guys, for that आपको यहाँ पे लिखना होता है method is equals to get. By default कुछ नहीं लिखोगे तो get. So method is equals to get और मतलब दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं, post और put और delete और head. So there are lots of methods. Put, post, delete, get, head. There are lots of methods. अभी और भी methods हैं. But now this is nothing but a method. Okay, so मुझे ऐसा करना था कि मुझे एक ही सबनेट पे काम करना। I do not want to define four different subnets. मतलब देखो मेरे पास ये जो फॉर्म है ना, ऐसे 4 फॉर्म थे। तो पहला फॉर्म जब रिक्वेस्ट करे तब भी मुझे फर्स्ट सबनेट पे जाना, सेकंड फॉर्म से जब मैं रिक्वेस्ट करूं तभी भी मुझे फर्स्ट सबनेट से जाना। लेट आई जस्ट डिफाइन 4 सबनेट्स, ओके, फोर फॉर्म्स, लेट आई जस्ट डिफाइन। सो ये मेरा पहला फॉर्म था, लेट आई से 1.html, लेट आई से 1.html से मेरा सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, 4 अलग अलग फॉर्म है मेरे पास। गॉट इट, 4 अलग अलग फॉर्म है। सेकंड वन में मैंने रिक्वेस्ट किया था पोस्ट, थर्ड वन में मैंने रिक्वेस्ट किया है पुट, फोर्थ वन में मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है दैट इज डिलीट। ओके, चारों फॉर्म में मैं एक्शन क्या लिख रहा हूँ, चारों फॉर्म में मेरा एक्शन क्या है, फर्स्ट सबनेट। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरे पास डेटा था, मैं ये डेटा ध्रुवी मैडम को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा था, मैं ध्रुवी मैडम को डेटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मिहिर के पास डेटा था, मिहिर भी ध्रुवी मैडम को डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, आलम सर के पास डेटा था, आलम सर भी ध्रुवी मैडम को डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, अमीषा के पास डेटा था, अमीषा भी ध्रुवी मैडम को फॉरवर्ड। सुना ध्रुवी मैडम कंफ्यूज कि मैं डेटा का करूँ क्या। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। गाइस आई नीड 5 मिनट्स। हाँ, मैं 5 मिनट्स में रिज्यूम करता हूँ, 5 मिनट्स। Okay, so let me continue. So now
हम लोग कहाँ पे थे कि मेरे पास अलग अलग जगह से रिक्वेस्ट आ रही है एंड द थिंग इज सबके सब रिक्वेस्ट में एक ही पेज पे नेविगेट कर। सो हियर आई हैव 4 फॉर्म्स एक्चुअली। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। हमने कुछ ऐसे एग्जांपल लिया था कि मैं ध्रुवी को मैसेज कर रहा हूँ, मिहिर सर ने भी ध्रुवी को मैसेज मतलब डेटा फॉरवर्ड किया। सो कंसीडर हम लोग सब लोग फर्स्ट सर्वलेट को डेटा देंगे। नाउ फर्स्ट सर्वलेट को क्या करना है? फर्स्ट सर्वलेट को एक्चुअली 4 अलग अलग डेटा मिल रहा है, बट आई वांट टू जस्ट से दैट मींस मैं एक्चुअली गेट टाइप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आई वांट टू से ध्रुवी मैडम मुझे एक्चुअली ये नाम और ये पासवर्ड वाले का बंदा इनका डिटेल्स, इस बंदे का डिटेल्स मुझे डेटाबेस से लाके दीजिए। एंड आलम सर जिससे मुझे ये डेटा इंसर्ट करना है। अब जो यहाँ से मैं डेटा पास कर रहा हूँ, आई वांट टू इंसर्ट दिस डेटा। ओके, आई वांट टू इंसर्ट दिस डेटा। ओके, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है? ओके, सबमिट मैंने कहीं से काट दिया है, सॉरी। सो यहाँ हर एक जगह पे सबमिट था, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। ओके, यहाँ हर एक जगह पे टाइप में सबमिट था। जस्ट अ मोमेंट, लेट आई अपडेट दिस फॉर्म। Okay, now the third thing is actually यहाँ पे मेरे पास put method था. So this guy just want to update the data and here I have delete method. This guy just want to delete the data. So actually हो क्या रहा है? First servlet के पास 4 अलग अलग बंदों से रिक्वेस्ट आ रही है। Let me just draw that. So ये 4 अलग अलग बंदों से रिक्वेस्ट आ रही है, सबकी सब रिक्वेस्ट एक ही सर्वलेट के पास आ रही है एंड चारों बंदे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। Someone wants to perform insertion operation, someone wants to perform delete operation, someone wants to perform update operation, someone wants to perform actually select star operation or get operation. So how to differentiate? ये भाई साहब कैसे differentiate करें? ये भाई साहब कैसे, ये अपना जो first servlet था वो कैसे differentiate करें? Then first servlet just says do one thing sir. आप मुझे डेटा भेजो ना, तो मुझे साइड में आप टाइप भी भेजो, कौन से टाइप का काम करना है। So method get means I want to perform select star. Method post means I want to actually insert the data. Put means I want to actually update the data and delete means I want to actually remove the data. So guys, अगर आप एक ही सर्वलेट में 4 अलग अलग काम करवाना चाहते हो, then just do one thing. Just go with the third approach. What is the third approach? Just define your servlet. Just define your servlet and inherit your servlet from the define your servlet and inherit your servlet from the HTTP servlet. Define your servlet from the HTTP servlet, and here you have not to define any method because HTTP servlet is a child class of generic servlet having no abstract methods. उसके पास कुछ भी abstract नहीं है। देखो, सबसे पहले servlet interface में 5 abstract methods थे। वो 5 abstract method मेरे पास generic servlet में आ रहे थे। generic servlet में उसमें से 4 बना थे। That means एक मेथड कौन सा रह गया था? We had a service method जो अपने जेनरिक सर्वलेट ने ओवरराइड नहीं किया, जो सर्वलेट इंटरफेस से आ रहा था जेनरिक सर्वलेट ने ओवरराइड नहीं किया। सो ये सर्विस मेथड कॉपी पेस्ट हो जाएगा जेनरिक सर्वलेट में चाइल्ड क्लास में एंड दैट इज एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट मींस दिस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट। सो दिस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ? जेनरिक सर्वलेट से मैंने HTTP सर्वलेट बनाया। तो जेनरिक सर्वलेट से टोटल कितने मेथड जेनरिक सर्वलेट में? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी मेथड्स इनसाइड द जेनरिक सर्वलेट? यस, एनीवन? मिहिर, आलम सर, तुषार सर? 4 5 सर, मैडम 5। 4 तो हमारे सर सर्विस सर्विस ऊपर से सर्विस गिफ्ट में आया, कॉम्प्लीमेंट्री आया। सो 4 मेथड के पास तो बॉडी पार्ट था, बट सर्विस मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट। तो जब मैं जेनरिक सर्वलेट से HTTP सर्वलेट बनाऊं तो मेरे पास कितने मेथड्स आने वाले? 5। बट आई डू नॉट लाइक सर्विस बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने यहाँ पे सर्विस मेथड खुद से बना दिया। मैंने यहाँ से सर्विस मेथड खुद से बना दिया, मतलब वो 4 मेथड मेरे पास आएंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। एंड 5वां मेथड कौन सा आया? सर्विस आने वाला था, मैंने आने नहीं दिया। दैट मीन्स मेरे पास अभी इसमें भी 5 मेथड। तो जब मैं सर्वलेट खुद से बनाना चाहूंगा, फर्स्ट सर्वलेट फ्रॉम HTTP सर्वलेट, मेरे पास 5 के 5 मेथड आ गए। init, destroy, get servlet config, get servlet context। ये 4 HTTP सर्वलेट को भी जेनरिक सर्वलेट से मिले, तो मुझे चारों के चारों मिल गए। 5वां मेथड मिल गया सर्विस फ्रॉम HTTP सर्वलेट, भाई ने खुद बना दिया। सो इन शॉर्ट, मुझे सर्वलेट बनाने के लिए 5 मेथड की जरूरत थी, मुझे 5 मिल गए, तो मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत थी। बट ये भाई साहब ने ऐसा बोला, सर अब मेरे पास कुछ स्पेशल वर्क है, मेरे पास कुछ स्पेशल है।
द फर्स्ट वन इज, मेरे पास एक और सर्विस मेथड, ये सब कुछ डिटेल में वंस अगेन लेंगे। मेरे पास एक और सर्वलेट मेथड है, but sorry, service method, but that is protected and it has two arguments, that is HTTP servlet request and HTTP servlet response, थोड़ा updated, so that is function overriding, sorry, function overloading, दो function के नाम same, arguments different, and it's a say, sir, I have some more methods, do get, do post, do delete, do get, do post, do delete. So this is do get, do post, do delete, and कौन सा था, put, okay. So मेरे पास कुछ और मेथड्स भी है, ओके, और भी मेथड्स है, बट दिस आर आल्सो यूजफुल। सो ये मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। क्यों इन सब का यूज करूं कि जब आप स्पेशली HTTP पे काम कर रहे हो, HTTP में मैं एक ही सबलेट पे एक ही बंदे को 4 बंदों से रिक्वेस्ट करा सकता हूँ, 10 बंदों से रिक्वेस्ट करा सकता हूँ, 15 बंदों से रिक्वेस्ट करा सकता हूँ, बट हर एक रिक्वेस्ट में मुझे अलग काम करना है, नॉट 15 और 20। ओके, हम लोग सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 4? गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। सो जब मैं डिफरेंट क्लाइंट से एक ही सर्वलेट में रिक्वेस्ट कराऊं, बट चारों को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना। आई जस्ट वांट टू से ध्रुवी मैडम प्लीज इंसर्ट दिस डेटा, आलम जस्ट से ध्रुवी मैडम प्लीज गेट दिस डेटा। ओके, ये क्रेडेंशियल मतलब ये आईडी और पासवर्ड है, मुझे डेटा गेट करके दीजिए। तुषार सर जस्ट सेंड my data to Dhruvi madam and just say, okay madam please update these records. Someone just send the data and just say, okay please delete this record. ध्रुवी मैडम के पास अब सभी जगह से डेटा आ रहा है एंड सबका डिफरेंट डिमांड है। सो डिमांड कैसे सेटिस्फाई होगा, डिमांड कैसे हम लोग उसके हिसाब से परफॉर्म कैसे करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिफाइन डिफरेंट फंक्शंस एज पर द डिमांड। तो यहाँ पे आप डू गेट का टास्क कर सकते हो। तो दिस फंक्शन विल बी ऑटोमेटिकली अटैच्ड विद गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। गेट टाइप इन द सेंस इफ यू हैव अ फॉर्म और उसको आप सबमिट कर रहे हो विथ मेथड गेट, तो इसके साथ कौन सा फंक्शन HTTP सर्वलेट का कनेक्ट हो जाएगा, डू गेट। यहाँ पे कौन सा फंक्शन कनेक्ट हो जाएगा, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट। इज इट क्लियर गाइस? तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। इफ यू डू नॉट वांट टू डिफाइन दैट्स फाइन, नहीं बनाना छोड़ दो। तो कौन सा फंक्शन रन होगा, कुछ भी रन नहीं होगा, दैट्स योर चॉइस, कुछ भी रन नहीं होगा। Okay, so that is up to you, but the thing is like there are 3 different way to define the subnet. First thing, define the class and that class must be public, that's that. Now inherit that class from the servlet interface. तो मैंने यहाँ servlet interface से inherit किया। Second, जब मैंने second time लिया तब generic servlet से inherit किया, but generic servlet किसका child class है, servlet interface। So वैसे देखे तो first servlet भी किसका child हुआ, servlet interface। Now आप ऐसा भी कर सकते हो, you can define the class from HTTP servlet. HTTP servlet is inherited from generic servlet. Generic servlet is inherited from servlet interface. So वैसे देखो तो first servlet इस केस में भी indirectly servlet interface से ही inherited. That's that. And override the required methods, not the useful. मैंने useful इसलिए लिखा था कि जैसे HTTP servlet में do get, do post भी हम लिख सकते हैं। Useful methods just override required, or you can say that useful methods. तो सर्वलेट मेथड, सर्वलेट इंटरफेस को यूज करोगे 5 मेथड बनाने ही पड़ेंगे बिकॉज़ इट हैज 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जेनेरिक सर्वलेट की बात करो तो आपको एक बनाना है, एंड HTTP सर्वलेट की बात करो देन इट्स फाइन, कुछ नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? Yes, sir. So now guys our concept is I want to define a servlet. So मेरे पास अब सर्वलेट कैसे बनाना हो पता चला। इट्स अ जावा क्लास, ओके, बट इसको रखो कहां पे भाई? हमने Apache Tomcat पहले से डाउनलोड कर दिया था। we will just give our servlet to Apache Tomcat. हम हमारा servlet Apache Tomcat को देंगे। So whenever the request comes in, our server means Apache Tomcat will recognize कि ये चीज मुझे कहाँ पे रखनी है। अदरवाइज ये जब रिक्वेस्ट आया तो कौन सा सर्वलेट मुझे रन करना है उसको पता होना चाहिए। तो एक तो बताने के लिए हम एक मैपर भी सेट करेंगे, मैपर भी देंगे, बट बिफोर दैट my requirement is भाई सर्वलेट तो हो पहले। So what we have to do? Okay, now आपकी वेबसाइट का नाम आप क्या रखना चाहते हो? आपकी वेबसाइट का नाम क्या रखना चाहते हो गाइस? So मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ माई एप्लीकेशन। So मेरा पहले तो Apache Tomcat कहाँ पे है? So my Apache Tomcat is here
जस्ट ओपन द अपाचे टॉमकेट। कैसे डाउनलोड किया था आपको पता है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया मैंने वहां से rar फाइल को, सॉरी zip फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, मैंने फोल्डर को कॉपी पेस्ट किया। देन इनसाइड दैट जस्ट ओपन दिस वेब एप्लीकेशन फोल्डर। मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। ओपन अपाचे टॉमकेट फोल्डर। Okay, now in web apps, in web application, what you have to do, in web application you have to create a folder. In web application you have to create a folder. आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो, so in web apps create a new folder, जो भी नाम रखना है that's your choice. Okay, so मान लो मैंने रखा my apps. Now inside that my apps, consider that is in my case that is my app. Yeah, fine, that is my app. So inside that myf folder, in myf folder, create one folder. ओए ये क्या है? So create one folder. क्यों? Because ये उसका सिंटेक्स है, इस तरीके से वो वर्क करता है। देखो आप अपना डेटा किसी और बंदे को दे रहे हो, आप अपना डेटा पड़ोसी के घर पे रख रहे हो, तो पड़ोसी ने बोला ओए आपका जो बैग है वो वहां पे कोने पे रखना। मान लो मैं किसी के घर पे हम एज ए गेस्ट जा रहे हैं, अभी तो होटल्स आ गए, बाकी बिफोर 10 years की बात करें तो हम लोग किसी के घर पे, मतलब मान लो मुझे जयपुर विजिट करना है या आई वांट टू जस्ट विजिट उदयपुर, तो काका मामा मासी चाचा उनको ढूंढ के उनके घर पे जाते थे। ओके, अभी होटल्स में जाते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं तो अभी होटल्स में जाने का ट्रेंड हो गया। सो मान लो हम किसी के घर पे जा रहे हैं एज ए गेस्ट, सो वो सीधा बोलेंगे, तब हमारे पास रूम सिस्टम भी नहीं थी कि हर एक के घर पे एक गेस्ट रूम हो। ओके, सो हम किसी के घर पे गेस्ट, काफियों को अगर पता हो तो गाँव जाते हैं तो वो सब बोल देते ठीक एक काम कर तेरा सामान वहां रख दो, ओके तेरा टूथब्रश यहाँ रख दे, आपके जो जूते सूते हैं वो यहाँ रख दो। ओके, एंड अगर आप कार लेके आए तो उस जगह पे पार्क करना, या मेरा कार रहता है, समथिंग लाइक दैट। तो आपको अलग अलग जगह पे हर एक चीजें रखनी पड़ेगी। सो गाइज मैं अपना जावा का प्रोग्राम किसी और को दे रहा हूँ, मेरा जावा का प्रोग्राम मैं किसी और को दे रहा हूँ। दैट गाय जस्ट से ओके डू वन थिंग, पहले तो आप अपना फोल्डर बना लो। तो आपने माई एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, दैट विल बी वेब आईएनएफ। नाउ व्हाट इज वेब आईएनएफ, वी विल डिस्कस दिस आल्सो इन डिटेल, बट वेब आईएनएफ मस्ट बी कैपिटल। वेब आईएनएफ इट्स अ प्राइवेट फोल्डर, सिंपल आई नीड टू से। नाउ इन दिस वेब आईएनएफ create one folder. ओहो क्या चीज है, create one new folder and that folder name must be classes, this thing you have to follow। मतलब guys मेरे पास वेब एप्लीकेशन था, वो अपाचे टॉमकेट में बनाया था। in this web application my website name, so मैंने अपनी वेबसाइट के नाम के लिए कुछ फोल्डर बनाया, and in this case that is actually my application। Okay, inside that I just create one folder that is web application। inside that मेरा एक और फोल्डर है classes। ये बनाना ही है, ओके ये आपको डेवलप करना है। now just write down your class। आप अपना सर्वलेट बनाओ, कोई भी तरीके से आप अपना सर्वलेट बनाओ, सर्वलेट बना के कंपाइल करो। ओके, सर्वलेट बना के कंपाइल कर लो, सर्वलेट बनाना आता है। so that is my first step। okay, now second step is define a servlet class। अब आपको servlet class डेवलप करना आता है, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। compile a servlet class and paste class file into classes folder। guys what I did, जो भी आप कंपाइल करोगे तो कंपाइलेशन के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, I will have a class file। तो उस क्लास फाइल कहां पे रखना है सर, क्लासेस फोल्डर। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। So let me just do this thing, जो भी बोला है वो कर देते हैं एक बार। So now I have a my application, inside that कौन सा फोल्डर होगा, yes anyone, फोल्डर का नाम क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं इसको ओपन, नहीं ये वेबसाइट का नाम तो खुद है, my application is my website, वेब आईएनएफ। देखो ना क्या हमने लिखा था, ये वेब एप्स नाम का जो फोल्डर है, वेब एप्स नाम का फोल्डर पहले था। ओके, वेब एप्लीकेशंस, उसके अंदर मुझे खुद का एक फोल्डर बनाना है, मैंने उसका नाम क्या रखा, माई एप्लीकेशन। ओके, उसके अंदर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आई हैव टू जस्ट क्रिएट ए फोल्डर वेब आईएनएफ। सो इनसाइड दैट आई जस्ट क्रिएट ए वेब आईएनएफ। इनसाइड दैट आई हैव अ क्लासेस फोल्डर, उसके अंदर मेरे पास क्लासेस फोल्डर होना चाहिए, ये रहा क्लासेस फोल्डर। अब वो क्लासेस फोल्डर के अंदर मुझे अपना क्लास फाइल रखना है, बट उससे पहले मुझे सर्वलेट बनाना था। सो गाइस मैंने सर्वलेट बना के यही रख दिया, इट्स अप टू यू आप कहाँ रखते हो। तो ये मेरा एक सर्वलेट है, जस्ट चेक दिस। I just write down public class generic servlet, sorry public class first servlet, उसको मैंने इनहेरिट किया जेनरिक सर्वलेट से। तो मुझे कौन सा मेथड बनाना पड़ेगा, ओनली सिंगल सर्विस मेथड। So I just define public void service, servlet request, servlet response, throw servlet exception। उसमें मैंने कुछ पता नहीं चल रहा था तो मैंने SOP कर दिया। एंड जेनरिक सर्वलेट को
सर्वलेट रिक्वेस्ट को, सर्वलेट रिस्पॉन्स को, सर्वलेट एक्सेप्शन को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक पैकेज लिखा import javax.servlet.star। दैट्स क्लियर। तो इसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? क्लास फाइल। सो क्लास फाइल को मैंने वेब INF में क्लासेस नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दिया। हियर आई हैव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. कौशिक सर का ऑलवेज Yes, आंसर sir. यस है। फाइन। तो यहाँ मेरे पास अब डेटा आ चुका है। ठीक है, तो अब जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ना, मैं उस रिक्वेस्ट को यहाँ मैप करना चाहता हूँ, तो लिखना पड़ेगा, एक मैपर बनाना पड़ेगा। सो मैपर के लिए दैट वाज आवर नेक्स्ट स्टेप। मैपर के लिए आपको एक और फाइल बनानी है। नाउ create one XML file. Name of that XML file must be web.xml. उसका नाम compulsory web.xml होना चाहिए। सर कहाँ बनाए इसको? इसको बनाए कहाँ? In web INF। So आप देखिए वेब INF में मेरे पास एक फाइल है। वेब INF में मेरे पास एक फाइल है web.xml. XML is like an HTML. Okay, XML is like an HTML. So now what I have to write down in this? That is actually a mapper file. मैपर फाइल मतलब जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करोगे तो उसको हम बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल को सर्वलेट के साथ मैप करता है। यूआरएल को सर्वलेट के साथ मैप करता है। मतलब अब मैं जब मेरे प्रोजेक्ट रन करूं, अब मैं अपना जब प्रोजेक्ट रन करूं, लेट ऐसे मैं यहाँ से प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ लोकल होस्ट :8081। अब वो 8081 क्या हो बाद में सिखाता हूँ। सो लोकल होस्ट चलना भाई, हाँ :8081 / अपनी वेबसाइट का नाम क्या था? Web apps. नहीं माई ऐप। कौशिक सर आज लोचा कर रहे हो। सो माई ऐप, उसके अंदर मुझे लिखना था टेक्स्ट। तो ये लिखने पे कुछ तो आउटपुट आना चाहिए भाई। तो इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज मैंने सर्वर बंद कर दिया है। फाइन, मैंने सर्वर बंद कर दिया। सो यहाँ पे कुछ आउटपुट आना चाहिए। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट। ओके, ये मेरा यूआरएल, यहाँ तक तो मेरा एप्लीकेशन है, बट दिस इज माई रिक्वेस्ट। टेक्स्ट इज माई रिक्वेस्ट। टेक्स्ट। तो ये यूआरएल को फर्स्ट सर्वलेट के साथ मैप करना है। इस यूआरएल को फर्स्ट सर्वलेट के साथ मैप करना है। व्हाट्स योर यूआरएल पैटर्न? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर यूआरएल पैटर्न? सर टेक्स्ट। माय यूआरएल पैटर्न इज टेक्स्ट। ओके, इसको किसके साथ मैप करना है? इसका मैं कोई वेरिएबल का नाम दे रहा हूं। देखो सर्वलेट नेम, कुछ भी लिख सकते हो। सर्वलेट नेम लेकर जैसे ए, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, इट्स अ वेरिएबल नेम। ओके, इसको बोला जाता है सर्वलेट मैपिंग। इसको बोला जाता है सर्वलेट मैपिंग। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन से ये ऑटोमेटिक कराएंगे। बट नाउ दिस इज द थिंग, इट्स नॉट अ हार्ड थिंग। जैसे आप फॉर्म नाम का टेग चालू करते थे तो मैंने मैपिंग नाम का टेग चालू किया, उसमें मैंने अपना वेरिएबल यूज किया एंड उसको इस यूआरएल पैटर्न के साथ कनेक्ट किया। एंड बिफोर दैट यू हैव टू राइट डाउन, बिफोर दैट यू हैव टू जस्ट राइट डाउन सर्वलेट। इनसाइड दैट यू हैव टू राइट डाउन सर्वलेट नेम। मतलब पहले से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा वेरिएबल है और उसका क्लास मतलब उसका वैल्यू फर्स्ट सर्वलेट है। व्हाट इज दिस फर्स्ट सर्वलेट? कैन यू प्लीज टेल मी? अपने क्लास का नाम क्या था जो हमने क्लास नेम है। बनाया? क्लास नेम है हाँ, सर्वलेट। दैट इज फर्स्ट। देखो छोटू रखा था मैंने, तो मैं यहाँ भी छोटू ही रखूंगा। तो ये फर्स्ट सर्वलेट को मैंने क्या नाम दिया? फर्स्ट सर्वलेट का नाम मैंने क्या रखा? ए। फर्स्ट सर्वलेट का मैंने क्या नाम रखा? ए। अब उस ए को मैं किस यूआरएल के साथ मैप कर रहा हूँ? टेक्स्ट। तो जैसे ही टेक्स्ट के साथ आप वर्क करोगे, मतलब अगर आपका यूआरएल पैटर्न टेक्स्ट है, अगर आपका यूआरएल पैटर्न टेक्स्ट है तो टेक्स्ट मतलब वो ए के साथ कनेक्ट होगा। ए का मतलब फर्स्ट सर्वलेट के साथ कनेक्ट होगा। इट विल एग्जीक्यूट डायरेक्टली, वो वर्क करते हैं। दिस इज द पैटर्न। बट सर इन सबको रखे कहाँ पे? एक यूनिवर्सल टैग होगा वेब ऐप। एक यूनिवर्सल टैग होगा वेब ऐप। जैसे आपका HTML होता है, हमारे यहाँ वेब होता है, वैसे ऐसे खेलते हैं। ओके, सो ये सब कुछ क्यों रखना है सर? web.xml. So let I just open the web.xml. Oh, we have lots of things. Just ignore this. Okay, now here we have. So web app सर्वलेट। मेरे सर्वलेट का नाम मैंने फर्स्ट सर्वलेट रखा था। You can write down anything. Here I do not want to set this. So answer is उसको मैंने फर्स्ट सर्वलेट के साथ कनेक्ट किया। So here this is सर्वलेट नेम, टैग क्लोज किया, सर्वलेट क्लास उसी टैग को भी क्लोज किया। So that is सर्वलेट। Second one is actually सर्वलेट मैपिंग। Second one is actually सर्वलेट मैपिंग और उसमें मैंने सर्वलेट नेम को यूज किया। That was already I just create that सर्वलेट and उसको text in the sense कोई URL के साथ मैप किया। So now guys let I just do some formatting. इसको मैं सेव कर चुका। Now my task is done.
अब मेरे पास सर्वलेट भी है, मैपर भी है. नाउ आई हैव टू जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट, बट सर्वर तो चालू करो. इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ सॉफ्टवेयर. नाउ डू वन थिंग गाइस, go to Apache Tomcat. once again go to Apache Tomcat, just go to bin. जैसे C लैंग्वेज में TC bin में जाते थे, in a similar way just go to bin में जाके आप स्टार्टअप पे जाइए. bin पे जाके मुझे क्या करना है, स्टार्टअप. it will be launched. कुछ एरर होगा तो भी यहाँ बता देगा, but of this there are lots of things, but it will be start within a few minutes, okay, few seconds. and कहाँ पे start हुआ है, just check. it is started on 8081. it is launched on 8081 port. ओके, आपके सिस्टम में अलग पोर्ट हो सकता है, मैंने कॉन्फ़िगर किया 81 पे. सो नाउ लेट आई जस्ट राइट डाउन लोकल होस्ट colon 8081. it just open a home screen of Apache Tomcat. Okay, now what is my website name? My website name is my app. My website name is my application. Just open that. It just generate error. Oh, what is this? So मुझे बोलना था, अभी भी URL बाकी है भाई, टेक्स्ट लिखने दो. So now यहाँ ब्लैंक आया हुआ है. So हमारे सर्विस मेथड में हमने क्या लिखा था, सर्विस मेथड में हमने क्या किया, ओ एसओपी किया हुआ है. सो नाउ लेट अस जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. ओ हियर देयर इज अ वेलकम मैसेज. ओके, मतलब अपना काम तो चल रहा है और वेलकम का मैसेज भी आ चुका है. दैट्स नॉट अ बिग डील, वेलकम का मैसेज भी आया. सो दैट्स दैट. माय सर्वलेट इज वर्किंग राइट नाउ. माय सर्वलेट इज वर्किंग राइट नाउ. इज देयर एनी इश्यू गाइस? दिस आर द स्टेप्स. वेयर इज इट? दिस आर द स्टेप्स. फोर्थ स्टेप इज दैट स्टार्ट सर्वर. सो उसके लिए मुझे क्या करना था, Apache Tomcat, bin फोल्डर, startup.bat पे डबल क्लिक करें. नाउ फाइनली ओपन ब्राउजर एंड जस्ट load your URL, make a request. That's that, you got your output. So that is the thing. This is the way how to run the servlet. This is the way how to run the servlet. I know that is the typical one. डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट एसओपी करके जावा देन क्लास का नाम नहीं लिख रहे, एक डिफाइन कर दिया एक क्लास, उसमें void main डाल दिया. So this is the typical one. Okay, so इसको मैं सेव भी कर देता हूँ स्टेप्स करके, एंड विल लाइक वेबसाइट के ऊपर लोड कर दूंगा जैसे